Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, welcome once again in your social science class. So, children, earlier we discussed about the continents, Asia and Europe. So, children, now tell me the name of biggest continent. Yes, you are thinking right. It's Asia. Asia is the largest continent in the world. Okay. And then also tell me how much percent of Earth's total land area is covered by Asia? Yes. Again, you are thinking right. It is 29.6%. Okay. Then also tell me, children, Europe and Asia together is known as Eurasia. Okay. Then, children, let us move ahead and also discuss about other continents. Okay. So, children, let us discuss about continent Africa. As we have already discussed, and do you know that Africa was called the dark continent? क्योंकि क्योंकि दूसरे कॉन्टिनेंट्स के लोग बच्चे ज़्यादा नहीं जानते हैं अफ्रीका के बारे में. And children, what is main thing about Africa? That it is second largest continent after Asia. Okay. एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एंड द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ अफ्रीका. सबसे गर्म कॉन्टिनेंट है. ओके. Separated from Europe by the Mediterranean Sea in the north. A very narrow piece of land known as Swiss Isthmus joins it with Asia in the northeast. It has the famous Suez Canal. Okay. So children, look at here. So this is the pic of African continent बच्चे. जैसा कि मैंने बच्चे आपको पहले बताया कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सी चीज़ सेपरेट करती है बच्चे. सो दैट इज़ मेडिटेरेनियन सी. हियर दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी. ओके. एंड ड्यू टू दिस सी यूरोप एंड अफ्रीका गॉट सेपरेटेड. ओके. एंड ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट स्वेज एस्मस. सो बच्चे हमने एस्मस वर्ड की भी बात की. स्वेज एस्मस. व्हाट इज़ एस्मस? तो एस्मस क्या होता है बच्चे? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड एरियाज. एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज सुएज एस्मस. ओके. इस छोटी सी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ने बच्चे कुछ किलोमीटर्स है, इसकी वजह से टू लैंड पार्ट्स, टू बिग लैंड मासेस जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं. ओके. सो चिल्ड्रन, हियर इट इज सुएज एस्मस and it joins Africa with Asia in the northeast. Okay. ये आपके अरेबियन पेनिनसुला है और इसी के साथ आपका अफ्रीका जो है किसके थ्रू जुड़ता है? सुएज इस्मस के थ्रू. ओके. एंड फ्रॉम दिस इस्मस बच्चे यहीं से ही सुएज कनाल बनी हुई है. ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, यहाँ से एक कनाल बनाई गई है. दैट इज़ नोन एज सुएज कनाल. इट वॉज मेड इन 1869 बच्चे. बर्थ ईयर ऑफ महात्मा गांधी, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं. और जब से बच्चे ये कनाल बनी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम हो गया है. ट्रेड रूट्स बहुत छोटे हो गए हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बीच में. ओके. सो इंग्लैंड पहुंचना हो बच्चे तो ये पूरा रूट ऐसे फॉलो करना पड़ता था अफ्रीका के केप फूड से होते हुए. बट सुएज कनाल के खुलने से 6000 किलोमीटर्स कम हो गए हैं अगर इंग्लैंड जाना हो. So Suez Canal is proving very very useful for whole the world. Okay. So this famous Suez Canal is in Africa. Okay. Then children, the Atlantic Ocean is on the west side of this African continent. Here it is Atlantic Ocean and it is S in shape, as you can see. S in shape. Okay. And children, Indian Ocean is on the east side of African continent. Here there is Indian Ocean. This is Indian Ocean. Got it? और क्या है बच्चे अफ्रीका में? The equator passes through the middle of Africa. As you can see, equator is passing through the middle of Africa.
However, larger part of Africa lies in the northern hemisphere. एंड जो लार्जर पार्ट है बच्चे अफ्रीका का मोस्टली वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही लाया करता है. ओके चिल्ड्रन, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट where all the three important lines of latitude passes, as equator also passes through the middle of Africa, and Tropic of Cancer also passes through Africa, and also Tropic of Capricorn passes through Africa. Here all the three important latitudes passes through African continent. Got it? Isn't it amazing? Then next, a vast land of North Africa is a desert and large area of Africa is covered with dense forests. जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है बच्चे, नॉर्थ अफ्रीका में मोस्टली डेजर्ट ही है. Here, so in the north side of African continent, there is desert. Okay. And बच्चे large part of African continent is also covered with dense forests. यहाँ पर घने जंगल भी हैं बच्चे. Okay, children, have a look at Suez Canal. As you can see, this is Suez Canal. Okay, what a view, amazing view है बच्चे. So this is isthmus, narrow strip of land. पतली सी स्ट्रिप थी पहले ये बच्चे लैंड की, जिसने टू कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रखा था, एशिया एंड अफ्रीका को. ओके, फिर इसी इस्मस के बीच में से सुएज कनाल को बनाया फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. ओके, एंड सुएज कनाल इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन promoting trade and commerce. Okay, also an aerial view of Suez Canal, again grand view. Okay, then children, have a look at the Mediterranean Sea. As you can see, this blue part is Mediterranean Sea. Okay, and ये एशिया एंड यूरोप को बटे अलग करता है. अगर बीच में ये मेडिटेरेनियन सी ना होता तो अफ्रीका एंड यूरोप दोनों ही एक कॉन्टिनेंट होते. ओके, देन चिल्ड्रन, देयर कम्स नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, जो नॉर्थ अमेरिका है बच्चे, वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और कहाँ पर लाया करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और जो नॉर्थ अमेरिका हम वर्ड सुनते हैं, इसमें जस्ट यूएसए ही नहीं है, इसमें एक बिगेस्ट कंट्री कनाडा भी है, एंड देयर आर आल्सो सम स्मॉल कंट्रीज लाइक मेक्सिको सिटी एट्सेट्रा. द अटलांटिक ओशन लाइज टू द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. सो बच्चे, अटलांटिक ओशन जो है वो इसके ईस्ट में है एंड पैसिफिक ओशन वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका के. ओके, द आर्कटिक ओशन मेक्स इट्स बाउंड्री इन द नॉर्थ एंड आर्कटिक ओशन जो है वो इसके नॉर्थ में है. द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्मस ऑफ पनामा. अगेन इस्मस बच्चे, तो जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है वो भी एक छोटी सी लैंड की स्ट्रिप के साथ जुड़े हुए हैं, एंड दैट स्ट्रिप ऑफ लैंड इज नोन एज इस्मस ऑफ पनामा. ओके, एंड अगेन इस्मस ऑफ पनामा से एक कैनाल बनाई गई है सुएज कनाल की तरह, दैट इज नोन एज पनामा कनाल. ओके, सो इट हैज़ पनामा कनाल विच ज्वाइंस द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन. सो पनामा कनाल ही बच्चे पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन को मिलाती है. गॉट इट? एंड चिल्ड्रन, Canada and USA are two major economically developed countries of this continent. Canada and USA जो हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा economically developed countries हैं बच्चे North American continent की. Okay, so this is the pic of North American continent. Okay, this orange color part is USA and this green color part is Canada बच्चे, and this is boundary between USA एंड कैनेडा. ओके, यहाँ पे ग्रेट लेक्स भी हैं बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं. गॉट इट? एंड अनदर कंट्री मेक्सिको सिटी एंड सम अदर स्मॉल कंट्रीज बच्चे, एज यू कैन सी. ओके,
एंड अटलांटिक ओशन बच्चे इसके ईस्ट में है, हियर इट इज़ अटलांटिक ओशन, एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। ओके, तो ये भी यूएसए का ही पार्ट है बच्चे। ओके, एंड यहाँ पे आर्कटिक ओशन जो है नॉर्थ में इसकी बाउंड्री बनाता है। गॉट इट चिल्ड्रन? हियर देयर इज साउथ अमेरिका, एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाली एक छोटी सी लैंड की स्ट्रिप आप देख रहे हैं। दिस इज नोन एज इस्मस ऑफ पनामा। ओके, ये छोटी सी स्ट्रिप है। सो बच्चे, फ्रॉम हेयर इस्मस ऑफ पनामा से एक कनाल बनाई गई है, एंड दिस कनाल इज नोन एज पनामा कनाल, जिसने कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। गॉट इट चिल्ड्रन? दिस इज पिक ऑफ इस्मस ऑफ पनामा, and you can see bache there are many small countries in this narrow strip. Okay, and from here Panama Canal is made, which joins Pacific Ocean and Atlantic Ocean. An aerial view of Isthmus of Panama bache, what a grand view. This is Panama Canal bache. This is also very useful in field of trade and commerce. Okay, one more pic of Panama Canal. At the one edge of this canal there is Pacific Ocean, and at the another end of this canal there is Atlantic Ocean. Okay, then children, let us discuss about another continent, that is South America. Okay, the larger part of it lies in the southern hemisphere. जो बच्चे साउथ अमेरिका है मोस्टली उसका लार्जर पार्ट कौन से हेमिस्फेयर में है? सदर्न हेमिस्फेयर में। ओके, एज द नेम इंडिकेट्स ये साउथ अमेरिका है और मोस्टली ये सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ओके, सो चिल्ड्रन, हैव अ लुक एट द पिक ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, ईस्ट साइड में बच्चे इसके अटलांटिक ओशन है, देयर इज अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, एंड वेस्ट साइड में देयर इट इज पैसिफिक ओशन, ब्राज़ील, Argentina and Chile or Chile are the major countries of this continent. ये तीनों मेन कंट्रीज हैं बच्चे इस कॉन्टिनेंट की। एंड बच्चे द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज, एंडीज जो माउंटेन रेंज है बहुत लंबी है। ओके, वो भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ओके, एज वेल बच्चे अमेज़न बेसिन, सबसे बड़ी रिवर, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड लाई हेयर। ओके, सो अमेज़न रिवर अगेन साउथ अमेरिका में लाई करती है। ओके, सो चिल्ड्रन हैव अ लुक एट द ग्रैंड कोर्स ऑफ अमेज़न रिवर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट को ये ड्रेन करती है। लुक एट हेयर, यहाँ से इसका ऑरिजिन है। लुक एट हेयर बच्चे कितनी लंबी है, एंड लुक एट द ट्रिब्यूटरीज जो इसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं, कितनी ज़्यादा रिवर्स इसमें ज्वाइन हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं और इसे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर बना देती हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। बच्चे इन टर्म्स ऑफ लेंथ रिवर नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, बट वो सिर्फ लंबी है, उसमें वाटर वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि अमेज़न में है। ओके, एज यू कैन सी कितनी ज़्यादा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हेल्पिंग रिवर्स है। ओके, गॉट इट? वन मोर पिक ऑफ अमेज़न रिवर मेकिंग meanders. लुक एट, जो सर्पीले मोड़ रिवर बनाती है, these are known as meanders. Okay, then children, there comes Australia. This continent lies completely in the southern hemisphere. बच्चे ऑस्ट्रेलिया आपका टोटली सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये। गॉट इट? इट इज़ सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द वेस्ट, यहाँ वेस्ट साइड पे बच्चे इंडियन ओशन है,
एंड पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है. एंड चिल्ड्रन, द southern ocean in South Australia, here there is South Australia, is also known as the island continent, which is partially populated. वैसे तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को ही आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है, बट इसके सदर्न पार्ट को मोस्टली आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है. ओके बच्चे, यहाँ पे वर्ल्ड फेमस कोरल रीफ भी है. कोरल रीफ क्या होती है बच्चे? जो डेड रिमेन्स होते हैं बच्चे सी क्रीचर्स के, तो जो उनकी स्केल्टन्स होती हैं, पॉलिप्स होते हैं, वो एक जगह डिपॉजिट होने लगते हैं और एक रीफ बना देते हैं. ओके, सो द ग्रेट बैरियर रीफ इज ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया. Children, as you can see, island continent of Australia. Okay, and children, there comes, do you know Australia is also known as Oceania? Collectively it includes Australia, New Zealand, Papua New Guinea, the Melanesia and Polynesia groups. Okay, Oceania also includes Micronesia, a widely scattered group of islands that run along the northern and southern edges of the equator. So बच्चे, पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ये छोटी छोटी कंट्रीज भी इंक्लूड हैं. ओके, इसमें न्यूजीलैंड भी आ जाता है. गॉट इट? सो बच्चे, देयर कम्स नेक्स्ट अंटार्कटिका. दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. ये सदर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल साउथ में है. ओके, इट इज स्ट्रेच्ड अराउंड द साउथ पोल अप टू द अंटार्कटिक सर्कल. बच्चे, ये साउथ पोल तक स्ट्रेच्ड है. ओके, और पूरा अंटार्कटिक सर्कल बनाता है ये. ओके, एंड द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में क्या है? इट इज़ सराउंडेड बाय सदर्न ओशन. यहाँ पर सदर्न ओशन है. दिस कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विथ वेरी थिक शीट्स ऑफ आइस एंड स्नो. ये कॉन्टिनेंट बच्चे थिक आइस शीट से और स्नो से कवर्ड है, जो कि पिघलती भी नहीं है आइस. और जो यहाँ पे बहुत थोड़े से लोग रहते हैं, एस्कीमोस, वो इस ड्राई आइस से अपने घर भी बनाते हैं. एंड दोज हाउसेज आर नोन एज इग्लूज. ओके, एंड चिल्ड्रन, इट इज एस्टिमेटेड दैट 3/4 of the total mass of ice of the earth is found in Antarctica. और ये माना जाता है कि बच्चे 3/4 आइस जो है पूरी दुनिया की, वो अंटार्कटिका में ही मिलेगी. ओके, सो चिल्ड्रन, हैव अ लुक एट द पिक ऑफ अंटार्कटिका. ओके, इसके नॉर्थ में साउथ सी है. ओके, और ये पूरा अंटार्कटिक सर्कल है, पोल तक स्ट्रेच्ड है. ओके, एंड बच्चे, ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशंस द लैंड इज़ नॉट इनहेबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स. बट चिल्ड्रन, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने परमानेंट रिसर्च बेसिस बनाए हैं. सच एज इंडिया के भी यहाँ पे 2 रिसर्च सेंटर्स हैं. ओके, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. सो हियर देयर इज दक्षिण गंगोत्री, द रिसर्च बेस सेंटर ऑफ इंडिया. ओके, and you can also see different research centers of different countries. Okay, so scientists लोग ही यहाँ पे research bases बना के रहते हैं. Okay, बहुत ही ज़्यादा cold conditions होने के कारण यहाँ पे human beings नहीं हैं. Okay, but scientists of some countries have established their research centers here. Okay, and India के मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं. So children, this is all in the tour of all continents. I think you have enjoyed this tour. Okay, so that's all in today's topic. Revise your topic. Thank you and have a nice day.